Good morning, beta. I hope you will be fine. So today Yes, I ma'am. am starting programming, how to make a program in a Python. So I am sharing Python screen. Have you downloaded Python? Yes, ma'am. Ma'am, not in the laptop. I have downloaded the PyDroid 3 mobile phone. Okay, no problem. So here I am starting with the Python screen. See here, are you viewing this? This is called interactive mode. So are you? It is available. Screen is available. Yes, ma'am. Screen is Okay, here available. this is called interactive mode, right? So whatever you Okay, are ma'am. writing here, at the same time you will get the response, right? See, normal, I'm Okay, ma'am. starting with the normal. So here Hmm. I am starting with the num equal 10. What is num here? Num is a variable. Number or variable. Number, Yes, yes, ma'am. variable. Num is a variable. What is variable? It is a user defined. See, anything you want to keep in in a proper manner, so you need a container, right? So Yes, here ma'am. we declare a variable so that we can keep any value in that, right? So here Yes, num ma'am. num is holding 10. Now if I write num here, directly it will show you print, right? So here, Yes, ma'am. see here, you are asking about the case sensitive na. I have declared num in a small. So I am writing num in If a, you will write, yes, yes, this is, I then it have will declared show the in a error small case. So here I have written in a one capital. So it will treat and it other as small. a wrong, right? Wrong error. Yes, It will. ma'am. So it is called case sensitive, in which way you have declared a variable in the same manner you have to use, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you are using like this, it will treat it a different variable, right? So here, Yes, ma'am. any mathematical operators you can use num2 here equal 30. So I am writing here, plus operator will be concatenated. See here, I am writing here directly. I am writing num plus num num2. False. So it is not showing anything. So why? See here, Why, ma'am? because I have not given any plus concatenation operator here. Here plus is a concatenation operator. Means both value will be added and display 60. Automatically Python, what does it? It show the which type of value you are assigning in particular variable, so that get the same value in that. If same thing you are writing directly by using मैम input command, yes bete. मैम लेकिन यहाँ पे वो जो नम था वो 10 था और जो नम 2 था वो 30 था, लेकिन जब इनको ऐड करा 60 किससे आया? So ये दोनों इक्वल कर दिया ना. num1 and num2 अच्छा I have declared as a same 30 हो गया ना यहाँ पर. See here, अच्छा that's why I am telling you. Python, this is a drawback of Python. First, I have declared a num as a 10, but I have written here num equal num2. So what happens? Num2, whatever num2 have a value will be assigned to num, because right to left assignment, that you know na, right to left assignment. So what is right side? Num1. If same thing I am writing again, I am using here num2, right? And here I am writing num. What um, happens? the answer will be 20. Ha, see here, if I am writing this, same value will be, because if you have declared a letter which variable, that assign the same value in that. Previously I have assigned a 10. See here, I am see the difference.
Same thing I am writing here. Okay, now I am writing Yes, here ma'am. 30. So now this output will be, see here, now it is a 40 because num have a 10, num2 have a 30, Yes. right? So Okay, ma'am. these are adding with this. Here num2 have a 30. I have written here num equal num2. So both the value will be equal because I have written num2 in the right side. If it will be in the left side, so it become a 10. See here, I am Okay. giving you example. This I have written num as a 10. Right? So it will Yes. assign. I am giving you practical script mode. See here. So this is called script mode. Python have a two mode. One is a interactive mode. Another is a script mode. Right? So here Yes, ma'am. I am writing num equal 10, num1 equal 30. So here rs equal, I am not num, able to see. you are not able to view. मैम नो मैम ये यहाँ पे आके अटक गया है नम Okay, नम now प्लस नम टू now यस now it मैम is visible. इज विजिबल यस मैम Okay, विजिबल see here, num equal 10, num1 equal 30. I have declared res. This is another variable which I am holding here with the plus operator, num1. So what happens when I run this program? Same I am copying again. Print rs. This is for printing. Now same thing I am writing again. Num1 equal num. So I am again printing, print num1 plus num. Here I am printing running. Before you have to run, you need to save it. Save your file, right? So here you have to, I am giving you practical one, prc1 dot py. What is dot py? This is a prc. This is a file name. Are you able to view? Yes. Visible, bete? So Yes, ma'am. Yes, ma'am. prc1. This is a file name dot py. That is a extension name. If you are using Word file, so you are saving a Word file. What happens? It become a file name dot doc. And Python Yes, ma'am. PowerPoint Okay, file, ma'am. it become a PPT. So it become a py, means Python extension. I'm saving it. Now I have to run. You have to click in a run. Okay, run module. Able to? Yes. See, I am running again this window. Are you able to view? दिख रहा है बेटे? Yes, ma'am. ये आउटपुट दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And 40 and 20, Yes. are you able to view? Why it is 40? Why it is Yes, ma'am. 20? Because I have declared as a see here. Here 10 and 30, it become a 40 in that. And here I have declared as a num1 equal num. So what is the value of num1 here? Previously 30. it was 30. Now it become a 10. 10. So 10
equal 10. Both are a 10. So now I am adding 10 plus 10. It is a 20. Got it? Yes, ma'am. Okay. But what is RS? RS is a variable. Just like a num, RS is a variable. I am using third variable, which is for calculating. Otherwise, you can write directly here. No need to write this. Okay. So num1 Yes, ma'am. plus num2 you can write directly in a print command. Here. It will also print the same. It works the same. Right? Visible? Yes, ma'am. See here, this is a beauty of Python. In a single code, 1 or 2 lines, we get the answer. I am talking about the another programming, C, C++, JavaScript. There are so many 5, 6, 10 line program. After you have to execute it, compile it, then you have to run. Here, only 2 line codes, few codes, and your problem will be solved. Get it? So now I'll discuss about that. You have a problem in that. Which was that? See here, I am also talking about the command line. What is command line? If I am using a hash operator, it become a command line. What is command line? It doesn't execute. It doesn't execute directly, right? It become a, see, if you have a problem in your book, in your notebook, you make some remark for that with a pencil, anything. So just like it become a command line remark only for user readable. If you run this, it will not visible. Got it? Okay. So all Yes, ma'am. this is called single line command. Remember it? With the hash operator, it become a single line comment. If you want to multi-line comment, I want to comment all these code. So what I need? 3 codes, triple quotes. This is called triple quotes followed by the triple quote. So it become a remark line. So it will not execute. If you want to continue, yes, yes, बच्चे. मैम मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी जो आपने बताया सारा पूरा हो गया हाँ स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी अभी थोड़ा वॉइस जो अभी आपने बताया हाँ बेटे बोलो मैम रिपीट कर दो कि जो अभी आपने बताया ये स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी अभी पता नहीं कैसे स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी ये आ रहा है विजिबल है अभी अभी विजिबल है लेकिन इससे पहले भी जो आपने करा ना ग्रीन हो गया ये वाला पार्ट मतलब हाँ ग्रीन हो गया ना ये ट्रिपल कोट्स आपने देखा है आपके जो लैपटॉप के ऊपर जो कीबोर्ड है उसके ऊपर कोटेशन एपोस्ट्रोफी सिंबल आता है ठीक है उसको 3 टाइम्स सिंगल कोटेशन को 3 टाइम्स हम करेंगे दैट बिकम अ कमेंट लाइन मल्टी लाइन कमेंट इट इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट ठीक है ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा ठीक है सो एनीथिंग मतलब ये जो पूरा है एग्जीक्यूट नहीं होगा ये पूरा आगे हम प्रोग्राम करेंगे इसी में कंटिन्यू करूंगी मैं तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब मैं रन करूंगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा ठीक है तो किसी चीज को कमेंट एक ही प्रोग्राम है एक पेज है इसी पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम करना है तो प्रीवियस जो पार्ट है मैं उसको क्या करूंगी कमेंट लाइन कर दूंगी ये 3 कोट ये जैसे मैंने 3 कोटेशन दिया ठीक है जैसे ये नहीं करूंगी तो ये ऐसे हो जाएगा कलर चेंज नहीं होगा देन मैं 3 टाइम 3 कोटेशन दूंगी ये ग्रीन हो जाएगा पूरा ना इसको क्लोज करना है मल्टीलाइन कमेंट्स को मुझे क्लोज करना है तो ये पूरा एक एरिया जो ये पार्ट है दैट बिकम अ मल्टीलाइन कमेंट गॉट इट समझ आए बच्चे मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही वो पता नहीं ऐसे आवाज पता नहीं क्लियर नहीं आ रही है इसके अंदर मेरी क्लियर नहीं है नो मैम अभी भी क्लियर नहीं है अच्छा वेट
and slow. Now audible? Yes, ma'am. Okay. See here, पूरा ये जो कोड है मेरा, ये पार्ट है that become a multi-line comment, right? Yes, ma'am. Yes. अब मैं इसी के साथ में कंटिन्यू करूंगी प्रोग्राम बाय यूजिंग इंट और इनपुट. ठीक है, इंट और इनपुट यूज करते हुए मैं एक आपका रिकॉर्ड बनाती हूँ, आपका नेम, रोल नंबर, क्लास, ठीक है, और उसको प्रिंट करते हैं. ठीक है, पहले मैंने लिया रोल नंबर, मैं एडमिशन नंबर लेती हूँ यहाँ पर, एडी नंबर. एडी नंबर, व्हाट इज एडी नंबर? दिस इज एडमिशन नंबर इक्वल. Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, एडमिशन नंबर नंबर में होगा तो मुझे डायरेक्टली क्या लिखना होगा, इंट. अगर उसमें स्ट्रिंग होगा तो क्या करूंगी मैं, डायरेक्टली इनपुट लूंगी. मुझे नंबर में इनपुट करना है तो देन आई एम यूजिंग इंट. इंट, सी कलर चेंज हो गया इसका. दिस इज इंट इज अ फंक्शन. इंट इज अ फंक्शन विच, ये क्या करता है बच्चे, जैसे मैंने कोई भी वेरिएबल मैं डिक्लेयर करती हूँ, उसको अगर मैं इंट नहीं करूंगी तो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ इनपुट इट बिकम अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग टाइप होता है ये. ठीक है, तो ये मैंने एडमिशन नंबर को इंट किया. अब इसके आगे लिखूंगी इनपुट. इनपुट, इनपुट मीन्स, इनपुट क्या करेगा, ये कीबोर्ड से आपसे रिप्लाई लेगा. इट टेक्स अ रिप्लाई फ्रॉम कीबोर्ड. सो हियर बिगनिंग ब्रैकेट इसका, ये ब्रैकेट जो मैंने स्टार्ट किया, ये इंट इज अ फंक्शन, तो ये इंट का फंक्शन का ब्रैकेट है. ठीक है, और ये मैंने दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये इनपुट का ब्रैकेट है. ठीक है, सो मैं सिंगल डबल कोट्स लूंगी. यहाँ पर सिंगल और डबल दोनों यूज कर सकते हो आप. सो यहाँ पर लिखूंगी एंटर योर एडमिशन नंबर, ये मैंने लिखा. ठीक है, अब ये जो डबल कोट मैंने स्टार्ट किया, इसको क्लोज कर दिया. ग्रीन कलर आ गया, आपने देखा है. ग्रीन कलर मीन्स व्हाट एवर यू आर इनक्लोजिंग इन अ डबल कोट्स स्ट्रिंग को एज इट इज, वो रन टाइम में आपको दिखाई देगा. सिर्फ दोनों में कंफ्यूज नहीं होना. ये भी ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको टॉप में, ये तो ये इसको मैंने ट्रिपल कोट्स में क्या करा, कमेंट्स कर दिया, ये विजिबल नहीं होगा. जो मैं इंट और इनपुट फंक्शन से जो मैं यहाँ पर लिखूंगी, दैट ओनली दिस पार्ट विल बी विजिबल, ये वाला पार्ट विजिबल नहीं होगा. गॉट इट? सो अब मैंने ये ब्रैकेट मैंने क्लोज किया इनपुट का, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज किया इंट का. सी पहले देखो ब्रैकेट में कैसे शेडेड चेंज हो रहा है. पहले मैंने ये फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज किया, ये बता रहा है कि ये किसका है, इनपुट का ब्रैकेट क्लोज हुआ है, ये बता रहा है इनपुट का. और वो अपने आप आ रहा है, ये शेडेड मैंने नहीं किया. ये इनपुट का ब्रैकेट, पहले इनर जो ब्रैकेट होता है वो क्लोज होता है, ये बता रहा है कि ये इनपुट का ब्रैकेट है. गॉट इट? सो अब मैं दूसरा ब्रैकेट क्लोज करूंगी तो वो पूरा इनपुट को कवर कर लेगा. ये देखो, वो इंट का होगा. हाँ, पूरा अब इंट का ब्रैकेट क्लोज हुआ. तो ये फर्स्ट इनर पार्ट क्लोज होता है, देन आउटर पार्ट क्लोज होता है. गॉट इट? अब मैं इसमें कुछ ही नहीं लगाना ना, सेमीकोलन कुछ नहीं लगाना, इसमें डायरेक्ट कोड है. सो सी हियर, दिस इज अ नेक्स्ट लाइन आई एम राइटिंग. सेम मैं इसको कॉपी करूंगी. यू कैन राइट विद द कॉपी, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर सकते हो कॉपी के लिए. सेम मैंने कंट्रोल वी किया. यहाँ पर एडमिशन नंबर की जगह मैंने लिखा नेम. ये नेम हो गया, ये आपके नेम के लिए. अब मैं नेम किस में होता है, कैरेक्टर में होता है, तो मैं यहाँ से इंट हटा दूंगी. इंट हटा दिया, और एक ब्रैकेट ये भी हटाना पड़ेगा मुझे. ठीक है, एंटर योर एडमिशन की जगह मैंने क्या कर दिया, एंटर योर नेम. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस देना है क्योंकि जो भी नेम इनपुट करोगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए. सो अगेन मैं क्या करूंगी, क्लास के लिए भी सेम कॉपी करती हूँ यहाँ पर. अब देखो मैं क्लास लिखूंगी, क्लास का कलर चेंज हो जाएगा. व्हाई?
क्लास इज अ कीवर्ड। क्लास यहाँ पर क्या है, कीवर्ड है। तो क्लास कभी भी वेरिएबल एज ए, जो भी वेरिएबल्स जो भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे वो उससे फंक्शन से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, पाइथन कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए। जो क्लास इज अ कीवर्ड। व्हाट इज क्लास हियर, इट इज अ कीवर्ड। सो मैं इसको चेंज करूंगी, वेरिएबल विद एस क्लास कर दिया तो कलर चेंज हो गया। राइट, इनपुट एंटर योर क्लास। इन बिटवीन जो डबल कोट्स में हम लिखेंगे दैट रिमेन एज इट इज। अब ये डॉन कंफ्यूज कि ये यहाँ पर मैंने क्लास लिखा है तो इसका कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, और यहाँ पर कलर ये देखो यहाँ पर चेंज हो रहा है और यहाँ पर नहीं हो रहा। ठीक है, बिकॉज इट इज अ कीवर्ड, तो इसलिए ये इसका कलर चेंज हो रहा है। तो इसको आई चेंज इट द डिफरेंट, डिफरेंट। ये डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे इसको एज इट मैम इज लेकिन जो रहेगा। क्लास होता है वो इंट में नहीं आएगा? नहीं, इंट में भी ले सकते हो। इंट के लिए फिर आपको यहाँ पर आपको इंट लिखना है, फिर वही सेम प्रोसीजर, ब्रैकेट लगा के उधर भी एक और ब्रैकेट। हाँ ये देखो, ठीक है, क्लास में करना है। यस मैम। ठीक है, yes. अब सेम चीज मैं दोबारा से ये कॉपी करूंगी। नेम के लिए यहाँ पर लिखती हूँ सब्जेक्ट। हम एज लिख दो। हाँ एज, हाँ ठीक है, एज लिख एज। देती हूँ। ठीक है, एज लिख देती हूँ, एज। अब एज मुझे इंटीजर में चाहिए तो मैं यहाँ पर इंट लिखूंगी, देन बिगनिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर एज मैंने चेंज किया। ठीक है, ये एज। मैं अब इसको चारों को मैं रन करती हूँ। क्या करेगा, खाली अभी रन करूंगी, खाली वैल्यू लेगा और प्रिंट नहीं करेगा। ये देखो, एंटर योर एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर हमारा इंटीजर टाइप है तो मैं 1001 मैंने किया। नेम, नेम मैं पुट करूंगी यहाँ पर। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटे। हमें स्क्रीन फ्रीज हो गई है। स्क्रीन नहीं आ रही? स्क्रीन फ्रीज हो गई है। आप कुछ कर रहे हैं वैसे अभी उसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कुछ शो नहीं हो रहा मूवमेंट। अच्छा ठीक है, मैं शो करते हैं ना। विजिबल, यस मैम, यस मैम। ये देखो मैंने 1001 किया, दिस इज एडमिशन नंबर, और मैंने सर्वेस किया, नेम किया। ठीक है, मैं दोबारा से एंटर करूंगी, क्लास पूछेगा। मैंने 11 किया, राइट। अब एज पूछेगा, एज मैंने यहाँ पर किया 15। ठीक है, अब ये देखो कोई प्रिंट नहीं आएगा बिकॉज आई हैव नॉट गिवन अ प्रिंट, ये एग्जिट हो गया। गॉट इट। खाली अभी हमने क्या किया, खाली इनपुट yes, का और प्रिंट का नहीं लिया हमने। नाउ आई एम गोइंग अगेन इन दैट पेज। इसमें गई, विजिबल है, अभी विजिबल है। अब लेकिन जाते कैसे ये वाला स्टेप मैम? यस, हम जाते कैसे, मतलब इस वाले वो स्क्रिप्ट मोड से इंटरैक्टिव मोड में? वो तो अलग अलग पेज ओपन हो कैसे? जाता है, अलग पेज ओपन हो जाता है। इसमें तो मैं शेयरिंग कर रही हूँ ना, शेयर में जाके दोबारा से उसको लिंक करना पड़ता है। ठीक है, उसमें तो डायरेक्टली दो पेज ओपन हो गए आपका। एक तो स्क्रिप्ट मोड होगा, एक रनिंग इंटरेक्टिव मोड होगा जो रनिंग मोड में जाएगा। दोनों दो सामने सामने दिखेंगे आपको, उसी पे क्लिक करके दोनों शीट ओपन हो जाते हैं। ठीक है, हेलो, गॉट इट बेटे? yes, विजिबल है ये? yes, अब मैं इसमें क्या करूंगी, yes, प्रिंट कमांड लगाऊंगी। प्रिंट लगाना है मुझे। ठीक है, मैं लिखूंगी प्रिंट, प्रिंट। अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट के साथ लिखना है योर नेम, योर एडमिशन नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ये देखो सिंगल कोट्स में भी आप यूज कर सकते हो, मैं सिंगल कोड यूज कर रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे योर नेम ऐसे लिखा हुआ आएगा, एडमिशन नंबर, और यहाँ पर लिखना है एडी नंबर। इस ब्रैकेट को क्लोज करूंगी। सी हियर,
ये आपके जो एडमिशन नंबर के साथ योर एडमिशन नंबर ये भी लिखा हुआ आएगा। विजिबल है? विजिबल है यस मैम। बेटे? यहाँ पर योर एडमिशन नंबर ये लिखा हुआ आएगा, उसके साथ जो भी आप एडमिशन नंबर इसमें इनपुट करोगे, जैसे मैंने किया 1001, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। गॉट इट? ठीक है। यस मैम। और मैं दोबारा से प्रिंट देती हूँ। योर एडमिशन उसकी जगह मैं देती हूँ यहाँ पर नेम। नेम और मैं यहाँ पर लिखूंगी मैम आई वांट टू आस्क समथिंग। यस बेटे। मैम अगर आप ये जो कमांड लिख रहे हो आप इस वाले मतलब पेज पे लिख रहे हो, लेकिन वो उस वाले पेज पे जा कैसे रहे हो? इंटरलिंक्ड है? हाँ, दोनों जो भी प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड में लिखोगे वो रनिंग आपका इंटरेक्टिव मोड में ही होगा। ठीक है। यस मैम। जो भी आप जैसे डायरेक्टली इंटरेक्टिव छोटे छोटे कमांड्स आपने करना है, डायरेक्टली यू कैन डू इन इंटरेक्टिव मोड। अगर आपने बिग प्रोग्राम स्क्रिप्ट मोड में लिखना है, सो व्हेन यू रन योर प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली इट ओपन अ इंटरेक्टिव मोड। ठीक है। ये पाइथन क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मीन्स एक एक लाइन को एक लाइन चलेगा फिर दूसरी लाइन चलेगी। अगर उसमें एरर आ जाता है फर्स्ट लाइन में, वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। अदर दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है? पहले पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, फिर आपको एक एक लाइन नंबर से वो एरर भेजता है। इसमें क्या करता है? फर्स्ट लाइन अगर आपकी करेक्ट है तो सेकेंड लाइन में मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है। ओके मैम। यहाँ पर मैं नेम लिखती हूँ। और यहाँ पर क्लास एज सी। अब ये जो मैंने इनपुट किया, अब ये सारा क्या कर रहा है? प्रिंट भी करेगा। मैं रन करूंगी। पहले सेव के लिए पूछता है ये रन। विजिबल है? विजिबल है रनिंग यस स्क्रीन? मैम। विजिबल है? यस मैम। ओके। यहाँ पर मैं पुट करूंगी 100। एक्सक्यूज मी मैम, नो नो इट्स नॉट विजिबल। नॉट विजिबल? नो नो। ना विजिबल? यस। अब मैंने यहाँ पर 1005 एडमिशन नंबर लिया और मैं यहाँ पर वैल्यू करूंगी, एनी वैल्यू मैं पुट करूंगी। ये पुट किया। ठीक है। ये नेम और क्लास 11 एज मैंने ये किया। ठीक है। जैसे ये इनपुट मोड में लिया, अब ये क्या करेगा? प्रिंट करेगा। देखो विजिबल है? यस मैम। योर एडमिशन नंबर, योर name, your class, your age, all will be visible. Got it? समझ Yes आया ma'am. बच्चे? यस मैम। अब यहाँ पर देखो, अब इस चीज को इसको मैं कमेंट करूंगी। ये प्रोग्राम समझ आया? यस मैम। अब मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब देखो मैं डायरेक्टली इसमें वर्क करती हूँ। ये वाला जो मैंने पहले किया था, इसको इनपुट से करती हूँ। ठीक है।
जो मैंने पहले किया था इसको इनपुट से करते हैं, डायरेक्टली इनपुट कमांड से करते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। अच्छा एक बात बताओ, जैसे पिछले महीने कराई जी, मैं इस वेरिएबल को डायरेक्टली इनपुट लेती हूँ, num इक्वल इनपुट एंटर द वैल्यू, ठीक है, ये टेक्स्ट के साथ आएगा, ठीक है। नम की वैल्यू गेट Yes, की है ma'am. इसने, num 1 मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, एंटर द वैल्यू ऑफ num 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट num प्लस num 1। अब क्या करेगा ये, जो भी मैं वैल्यू num और num 1 में मैं गेट करूंगी ये इसको प्लस करेगा, बट ये प्लस नहीं करेगा। जैसे मैंने इंटरेक्टिव मोड में डायरेक्टली ये प्लस कर रहा था, लेकिन इसमें नहीं करेगा, बिकॉज इनपुट फंक्शन से जो भी हम वैल्यू गेट करते हैं एज अ स्ट्रिंग होता है, क्या स्ट्रिंग हो जाता है। हियर आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम। अच्छा अच्छा, इसमें मैंने वो नहीं किया, सॉरी डबल कोट्स नहीं किया, चलिए अभी एक एरर आया तो उसी वहीं पे रुक गया, ये आगे चला नहीं। इसमें क्या करता है कि अगर एरर उस टाइम आ गया तो सेम वहीं पे रुक जाएगा। Yes, ma'am. Interpreted. हाँ, ये डबल कोट्स लगाना भूल गई थी मैं, ब्रैकेट लगाना भूल गई थी, तो वो चला ही नहीं। सो इसमें छोटी छोटी चीज का हमें ध्यान रखना है। सो नाउ आई एम रनिंग, सो एंटर द वैल्यू ऑफ नम, मैंने यहाँ पे किया 50। विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, रनिंग ma'am. इंटरेक्टिव मोड विजिबल है। Yes, ma'am. Interactive mode visible है. ओके, यहाँ पर मैंने किया 60। सो नाउ क्या होगा, ये ऐड नहीं होगा, वैल्यू ऐड नहीं होगी, 50 एंड 60 डिस्प्ले करेगा। देखो क्या आया आउटपुट हमारा, 110 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या डिस्प्ले कर रहा है, 50 और 60। आपने प्रिंट के अंदर वो प्लस का साइन लगाया था ना, तो ये ऐसे क्यों आ रहा है? हाँ, मैं बता रही हूँ आपको क्यों आ रहा है। जो भी हम इनपुट फंक्शन से हम लेते हैं, मैं दोबारा से वही स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सी है, जो भी हम इनपुट फंक्शन से हम वैल्यू गेट करते हैं, व्हाट हैपेंस, बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग हो जाता है। स्ट्रिंग मींस कैरेक्टर टाइप हो जाता है। गॉट इट? क्या हो जाता है, कैरेक्टर टाइप हो जाता है, स्ट्रिंग टाइप। सो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको प्लस करूंगी, देखो प्लस लगाया मैंने, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगी। अब यहाँ पर मैं इंट लगाऊंगी, इंट फंक्शन लगाऊंगी। देखो मैंने इंट लगाया इसमें, और इसमें भी इंट लगाया। नाउ आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम। मैंने क्या किया, अभी खाली इंट ऐड किया है मैंने। सो आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम। ये देखो नंबर मैंने किया, वो सेम वैल्यू 50। नाउ विजिबल है स्क्रीन, इंटरेक्टिव मोड विजिबल है बेटे? नो मैम. अब विजिबल है? यस मैम. देखो मैंने पहले भी 50 एंड 60 इनपुट किया था, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आया, 50 एंड 60। नाउ मैंने सेम किया, अब दोनों को प्लस हो जाएगा। देखो 110 आ गया। यस मैम. सो व्हेन वी क्रिएट अ प्रोग्राम, व्हेन यू यूज इनपुट फंक्शन हम यूज करते हैं, जो भी वैल्यू हम इनपुट फंक्शन में हम यूज करेंगे, दैट बाय डिफॉल्ट इट बिकम अ स्ट्रिंग टाइप हो जाता है। गॉट इट? यस मैम. इनपुट फंक्शन से जो भी हम वैल्यू गेट करेंगे वो क्या हो जाएगा,
स्ट्रिंग टाइप हो जाता है। स्ट्रिंग फॉर्म, यस हाँ, मैम, स्ट्रिंग फॉर्म में आ फॉर्म जाएगा। में। हाँ, तो उसको हमें कन्वर्ट करना होता है। एक तो इंटीजर से हमें करना होता है, और सेम लिसन में आई एम गिविंग अ सेम एग्जांपल इन अदर वे। देखो मैंने इंट किया, अगर मैं फ्लोट करूंगी यहाँ पर, देखो फ्लोट भी कर सकते हो आप। फ्लोट मैंने लिखा, फ्लोट इज अ डेटा टाइप। फ्लोट इसको कन्वर्ट करेगा डेसिमल में। तो मंदिर आने जाने लगाऊंगा। विजिबल है स्क्रीन? यस, हाँ, नम को मैंने किया फ्लोट टाइप, और num1 को भी मैंने फ्लोट किया। अब मैं इस दोनों को रन कर रही हूँ मैं अगेन। ये स्क्रीन विजिबल है अभी? नो मैम, अब विजिबल है? यस मैम, ठीक है, मैं यहाँ पर करूंगी 40.5। 40.5 मैंने किया यहाँ पर। दिस इज अ डेसिमल वैल्यू, ठीक है। अब मैंने यहाँ किया 50.8, ठीक है। सी both the value added with the decimal, got it? यस तो मैम, स्ट्रिंग वैल्यू को आप एक तो इंट में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीजर में, और फ्लोट होगा तो फ्लोट वैल्यू में। अगर आपको डेसिमल चाहिए देन डेसिमल में चाहिए, हाँ, फ्लोट। यस, ओके मैम, गॉट इट? यस मैम, अब मैंने देखो, अब मैं इसको num1 और num2 का टाइप देखना है कि किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। ये वेरिएबल जो मैंने num और num1 मैंने डिक्लेयर किया, उसको मैंने देखना है उसका टाइप क्या है, मतलब डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप को देखने के लिए हमें क्या करना होता है? टाइप इज अ फंक्शन। टाइप क्या है यहाँ पर? फंक्शन है, कीवर्ड फंक्शन है, ठीक है। इसमें मैं क्या ओके, लिखूंगी? नम को मैंने लिखा को नम का डेटा टाइप बता। इसका क्लास क्या है? फ्लोट है। इसका डेटा टाइप Float. क्या है? फ्लोट है। सेम वहाँ 10 बजे टोकन दे करके ना चाय नम का वन लिखूंगी। बना हुआ है, 10 बजे नम टोकन दे करके बोल देते बाकी लोग जाओ। num1 उसका भी डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है। गॉट इट? यस मैम, सो हियर आई एम शेयरिंग अगेन दिस स्क्रीन। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी? इसको मैंने इंट लिखूंगी, इंट। तो मैंने इसका डेटा टाइप देखना है, मैंने क्या करूंगी? अब दोनों का पहले फ्लोट आया था, ठीक है। सो नाउ सी हियर, अब मुझे इसका नम प्रीवियसली फ्लोट आया था, तो अब मैंने इंटीजर में मैम, कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब मुझे स्क्रीन दोबारा से देखना है। रनिंग स्क्रीन नहीं दिख रही। रनिंग स्क्रीन नहीं दिख रही? ओके ओके, विजिबल है? यस मैम, अब मुझे नम लिखूंगी यहाँ पर। नम का डेटा टाइप मुझे चेक करना है, इंटीजर, इंटीजर आएगा। इंट, हाँ, यस मैम, सेम Got it. num1 लिखूंगी, उसका भी इंटीजर। इट, मैंने नेम लिखा, नेम इक्वल, मैंने लिखा सर्वेश लिखा, ठीक है। अब मुझे नेम का टाइप देखना है, ये टाइप कैसा है, किस टाइप का है नेम वेरिएबल। तो टाइप नेम, तो ये टाइप बताएगा, ये स्ट्रिंग टाइप है। देखो क्लास स्ट्रिंग है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर एक आईडी इज ऑल्सो अनदर फंक्शन। आईडी एक फंक्शन है। उससे क्या करते हैं हम? एड्रेस, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, जो वैल्यू हमने असाइन किया, उसका आपके उसमें से, लैपटॉप में से, आपके डेस्कटॉप में से, मोबाइल में से एड्रेस बताएगा। एड्रेस, गॉट इट?
जैसे ये मैं यहाँ पर रन कर रही हूँ, इसका एड्रेस डिफरेंट होगा, आप जो रन करोगे आपके उसमें एड्रेस डिफरेंट आएगा। तो मैं क्या करूंगी, id इज अनदर फंक्शन विच शो द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ऑफ वैल्यू। ये वैल्यू जो मैंने नेम में स्टोर किया, नम में स्टोर किया, उसका कहाँ पर जाके स्टोर हो रखा है वो एड्रेस चेक करेगा। ये मैं लिखूंगी नेम सी, दिस इज द एड्रेस ऑफ द वैल्यू, जो नेम में मैंने ये सर्वे जो मैंने स्टोर किया, गॉट इट। वो कहाँ पे जाके हार्ड डिस्क Yes, में ma'am. जाके स्टोर हुआ उसका एड्रेस बता रहा है, लोकेशन। जैसे एक पूरा लैंड होता है, लैंड में पूरा हाउसेस के नंबर लिखे हुए हैं, ऐसे जो वैल्यू हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसका पर्टिकुलर लोकेशन होता है, वो बाइट्स कहाँ पे जाके स्टोर हो रखा है। सो इट शो द एड्रेस ऑफ द वैल्यू। वैल्यू। हाँ, अब मैं इसका लिखूंगी नम का आईडी नम, ये नम का सी, इसका डिफरेंट है और इसका डिफरेंट है। आप अपने सिस्टम में चलाओगे उसका डिफरेंट होगा। मैं आईडी डिफरेंट आएगा। सेम num1 करूंगी, इसका डिफरेंट होगा num1। ये देखो एट द सेम टाइम इसकी देखो एड्रेस पूरा चेंज आ रहा है। यस मैम। तो अब आपने क्या किया, इंट फंक्शन क्या करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है। जो भी आप स्ट्रिंग में आप वैल्यू गेट करोगे उसको कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन यूज होता है, राइट। और इनपुट फंक्शन क्या करता है, व्हाट डज इनपुट फंक्शन, व्हाट डज इनपुट फंक्शन, इट कन्वर्ट, इट गेट द वैल्यू इन अ स्ट्रिंग टाइप। जो भी वैल्यू कीबोर्ड से हम इनपुट करने के लिए इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। डायरेक्टली आप इंटरेक्टिव मोड में भी आप यूज कर सकते हो इन फंक्शन को, राइट। इन फंक्शन Yes, को ma'am. डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इंट गेट द वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड एंड, अब हमने प्लस का भी हमने कर लिया। अब हम माइनस का भी हम इसमें करेंगे। देखो सेम वेरिएबल में मैं क्या करूंगी, ये प्लस किया, मैं दूसरा वेरिएबल लूंगी। आर यू एबल टू व्यू, स्क्रीन विजिबल Yes, है। ma'am. सो इसी में क्या Step कर रहा है, प्रिंट, just you have to change the operator num minus num1, this is for subtraction, यहीं पे कर देगा, ठीक है। Yes, ma'am. सब्ट्रैक्शन कर देगा। अब मैं सेम प्रिंट यहाँ पर कॉपी करके इसको तीनों ऑपरेटर चेंज कर रही हूँ। ये मैंने किया मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। और ये कर रही हूँ मैं डिवीजन के लिए। डिवीजन, देयर आर टू टाइप ऑफ डिवीजन, वन इज अ नॉर्मल डिवीजन और फ्लोर डिवीजन इज देयर। And floor. हाँ, Yes, ma'am. फ्लोर Floor डिवीजन division. हमने किया Double. था, फ्लोर 2 टाइम स्लैश ऑपरेटर, Yes. गॉट इट। 2 time division sign. हाँ, Yes, ma'am. और ये करूंगी अगेन प्रिंट करूंगी मैं, इक्वल इक्वल चेक करेगा ये, ठीक है। और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बताया था ना, एक्सपोनेंट, व्हाट डज एक्सपोनेंट, Double mul. हाँ, Yes, ma'am. Double 2 multiple टाइम्स, sign. हाँ, ठीक है। Yes, ma'am. अब मैं 2 इसको times रन multiple करूंगी, sign. हाँ हाँ बेटे, मैं इसको रन करूंगी। सी द डिफरेंस, जो भी वैल्यू गेट करूंगी उसको क्या करेगा, अच्छा ये पूरा भर गया, ये दोबारा से मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। ये इंटरेक्टिव मोड विजिबल है, Ma'am. No, हाँ? ma'am. नहीं, No. No. नाउ विजिबल, No. Yes, ma'am. Now विजिबल है, ओके। सो आई एम राइटिंग हियर 40 एंड 60। सी फर्स्ट हमारा ये ऐड हुआ है, ये वाला क्या है, एडिशन का है, ये सब्ट्रैक्शन का है,
ये मल्टीप्लिकेशन का है और ये डिवीजन का है और ये फ्लोर डिवीजन। सी द डिफरेंस। फ्लोर डिवीजन Yes, में क्या ma'am. करता है, ये वाला डिवीजन का, डिवीजन में डेसिमल पॉइंट शो करता है और फ्लोर डिवीजन में कोई वैल्यू, डेसिमल वैल्यू शो नहीं करता, ओरिजिनल वैल्यू शो करेगा। और ये फॉल्स किसका आया, बताओ? इक्वल जो लगाया था, Yes, इक्वल ma'am. ऑपरेटर Equal लगाया था ना, टाइम इक्वल क्योंकि लगाया एक था ना 40 और वो। एक हाँ, वो कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो इक्वल क्या, कंपैरिजन, ये फॉल्स शो किया। और ये क्या किया, ये किसका Yes, है, ma'am. ये एक्सपोनेंट का इतना सारा आ गया। exponent. हाँ, गॉट इट, Yes, ma'am. क्लियर Yes. दिस? तो ये छोटे छोटे ऑपरेटर Yes, ma'am. क्लियर हो गया, आईडी क्लियर हो गया, आईडी इज क्लियर। Yes, ma'am. Yes. ठीक है बच्चे, तो अब मैं इसी को प्रोग्राम मैंने करना है, ये प्रोग्राम करना है। मैं जैसे मैंने ये दिया, ये मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर, राइट अ पाइथन प्रोग्राम, write a Python program to input your admission number, comma, name, comma, class, comma, age. Got it? ये किसका प्रोग्राम हो गया, ये इसका। ठीक है, अगर क्वेश्चन होता है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट योर एडमिशन नंबर, क्लास एंड एज, प्रिंट इट एंड प्रिंट टू। गॉट इट? फिर सेकेंड वाला हो गया, इसी में राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट अ 2 नंबर, मेक अ कैलकुलेटर। ठीक है, मेक अ कैलकुलेटर, ये तो डायरेक्टली मैंने प्रिंट के साथ दे दिया। अगर मैं देती हूँ यहाँ पर रिजल्ट इक्वल, मैंने दे दिए यहाँ पर num1 प्लस num2। अब मैं यहाँ पर प्रिंट किसको करूंगी, रिजल्ट को। देखो, अनदर वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल क्या लिया मैंने, रिजल्ट, ये। अदरवाइज यू कैन राइट अ सम हियर, सम के लिए सम। ओके मैम। यहाँ पर क्या लिखोगे, सम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सेम ये, इसको सबका अलग अलग करना है मुझे, ये चीजें मैंने किया। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर चेंज करूंगी, माइनस, यहाँ पर क्या करूंगी, SUB। गॉट इट? यस मैम। समझ आया? तो प्रिंट, ये सब्ट्रैक्शन, ये वेरिएबल दोनों को प्लस कर रहा है और यहाँ पर प्रिंट कर दिया मैंने ये। अब ये क्या कर रहा है, दूसरा वेरिएबल मैंने लिया, ये सम वेरिएबल लिया, ये सब्ट्रैक्शन वेरिएबल लिया, इसमें माइनस कर रहा है। और एक मैंने और लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, MUL लिया, और इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ऑपरेटर चेंज करना, सिंपल छोटे छोटे प्रोग्राम आपको बनाना है। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट, कंफ्यूज मत होना बच्चे, बहुत इजी है। अगर ध्यान से आप करोगे अभी से, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे टॉप करोगे। गॉट इट? यस मैम। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स जैसे मैं ये बनाया, मैं शेयर कर दूंगी आपको। ठीक है, तो ये इसी तरह से ये आप ये कर सकते हो। I have taken the screenshots of all these things which you have written in the screen. ओके ओके, तो इतना ही समझ आया बच्चे, समझ आ गया? यस मैम, मैम पूरा आ गया जो बताया आपने। हाँ, मेरी 12:30 बजे क्लास है बच्चे। ठीक है, अभी 12th की क्लास लेनी है मुझे, तो ये आप प्रैक्टिस करो। जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी। ठीक है, ओके ओके मैम। ओके बच्चे, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके बच्चे।